Good afternoon, everybody. I welcome you to a new interesting episode of at CxO Global Forum Rendezvous show with your very own host, Rabia Sajjid. As you all know, that CxO Global is a knowledge sharing platform across the globe. Today, we have the honor to have beautiful, talented, inspiring Dr. Hina Ghole with us. She is a Chief Medical Officer at BIMA MILVIK Pakistan. So, कैसी हैं आप डॉक्टर हिना गोयल? Hello, thank you so much, Rabia, for having me here. It is our pleasure to have you here on the show. And thank you for taking out your precious time for us, especially on Sunday. तो कैसा जा रहा है आपका संडे? Bobby. Sunday is always very busy, and आज भी वैसे ही जा रहा है. I'm sure So संडे many थोड़ा things in फैमिली टाइम pipeline. होता है. Absolutely. जी. तो डॉक्टर हिना, हम स्टार्ट करेंगे इस तरह कि आप थोड़ा सा हमें अपना रोल बताएं कि आपका क्या रोल है बीमा मेलविक पाकिस्तान में. So I'm working with BIMA MILVIK Pakistan since almost 1 year and close to half more year. Our role is like ज़ाहिर है, it's basically medical related. और इसके अंदर it ranges from अब मुझे recruitment process देखना होता है and whoever is getting in the team उनकी credential देखनी होती है कि either they have the active licenses or not. I make sure the quality is up to the par क्योंकि as you know BIMA Milvik is a global organization and we follow the quality standards which are set as per the global guidelines. और if I say कि जो है जैसे नाइस गाइडलाइंस होती हैं WHO गाइडलाइंस होती हैं which basically are the best standards worldwide. So we make sure कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर they are following the same procedures and processes as the other doctors are working worldwide. So उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं which we plan out, कुछ quality improvement plans होते हैं वो जो हम देख रहे होते हैं. फिर obviously when you want to take care of the quality you need to conduct audits also. So I have a team of doctors who are looking after that. So ज़ाहिर है I keep in touch with my team जो मेरे managers हैं who are quality assurance manager. But with that, I make sure I'm there for my team for coaching, mentoring them. Besides that, you know, जितनी भी ज़्यादातर मेरे पास 68% of my doctors are female doctors. So I make sure that उनकी एक continuous medical education वहाँ पे है और हम लोग जो है उनसे सिर्फ it's not work, it's education as well. So एक tech training जो है we continuously start we make sure कि हम लोग उन लोग को दे रहे होते हैं. Plus with that कोई भी new advancements हैं updates हैं because after COVID even without COVID medical field ऐसी होती है जिसके अंदर daily कोई नई चीज़ आ रही होती है. So Of I make course. sure कि I check those things क्या advancements आ रही हैं और क्या चीज़ें नई हो रही हैं and I make sure कि मैं अपनी टीम के अंदर भी वो सारी information जो है वो करती रहूँ trickle down. विद दैट फिर अगर बिजनेस साइड पे आ जाएं तो डिफरेंट बिजनेस पार्टनरशिप्स का देखना कि व्हाट विल वर्क आउट विद अस व्हाट विल बी बेस्ट फॉर आवर कस्टमर्स जो एम हेल्थ की सर्विसेज ले रहे हैं या टेलीमेडिसिन सर्विसेज ले रहे हैं इन बीमा. फिर उसके बाद कस्टमर्स का फीडबैक लेना होता है उसके अंदर आई कीप इन टच विद माय टीम जो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसके हम लोग वॉइस ऑफ कस्टमर्स को नोटिस करते हैं उनके कस्टमर फीडबैक्स ले रहे होते हैं अगर उन्होंने कोई एडवाइसेस दी होती हैं तो हम उनकी एडवाइसेस के ऊपर देख रहे होते हैं कि हाउ कैन वी वर्क ऑन दैट और अपनी सर्विसेज में उनकी एडवाइसेस को शामिल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन अगेन क्योंकि हम लोग कस्टमर्स को जो है बहुत सारी हेल्थ अवेयरनेस मैसेजेस दे रहे होते हैं तो आई मेक श्योर कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं स्पेशली फॉर वुमेन क्योंकि देखा गया है कि इवन पढ़ी लिखी कॉर्पोरेट ख़वातीन को भी जो है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पता अनफॉर्चुनेटली और पाकिस्तान में हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा होता और कुछ चीज़ों के ऊपर इतना
ओपनली बात नहीं हो रही होती ड्यू टू सम टैबूज, मिथ्स की वजह से। सो वी ट्राई टू सेंड दोज मैसेजेस जिसके अंदर ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग अपने कस्टमर्स को स्पेशली ख़वातीन को जो है वो अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ माय रोल। Obviously there are many other things. नहीं, आई एम श्योर इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये लिटिल पार्ट नहीं है, आई थिंक ये बहुत बड़ा पार्ट है बिकॉज Absolutely. प्लेइंग यू आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अभी आपने मेंशन किया है कि आपने कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स में 80% जो है वो फीमेल हैं, तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी नहीं होती होगी क्योंकि इन पाकिस्तान Yes. स्पेशली औरतों के साथ और भी बहुत मसाइल चल रहे होते हैं घर के, लाइक बहुत प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स। तो उन 80% खवातीन से आप कैसे मैनेज करती हैं रिजल्ट निकालना या उनको एजुकेट करना, क्योंकि लड़कियों के साथ और भी चीज़ें बहुत साथ चल रही होती हैं। तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं उनको ट्रेन करना, उनसे काम निकालना, मतलब सब कुछ ये कैसे मैनेज होता है? So, obviously, I have worked with male doctors also and female doctors as well. Me being a female also, okay, जो मेरा experience है with female doctors, I think we are the brightest. ठीक है, there's no bias. But the thing is, I think females are better time managers. Females absorb things in a much better way. और अगर मैं सर्विस क्वालिटी की बात करूँ, क्योंकि देखें जो डॉक्टर्स की फील्ड है ना, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री समझें, क्योंकि ज़ाहिर है यू आर स्पीकिंग टू योर कस्टमर, योर पेशेंट, एंड यू आर गिविंग अ सर्विस जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके अंदर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है, आप उससे फॉलोअप किस तरीके से ले रहे हैं, और कितना आप अपने आप को अच्छे तरीके से पेश करें अपने मरीज के सामने, ताकि वो इतना इजीली आप पे ट्रस्ट करे और आपको सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली बता सके और सारी चीज़ें इतने आराम से आपके साथ डिस्कस करे कि आपके लिए इलाज करना बेहतर हो जाए। सो आई थिंक अगर वो फीमेल फैक्टर की मैं बात करूँ ना, तो इट्स वेरी ईजी फॉर अ फीमेल डॉक्टर टू पिक अप एवरीथिंग, और जो सर्विस की जो एक क्वालिटी होती है वो फीमेल की तरफ से बहुत अच्छी आती है। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में आप बताएं, टीचर्स भी ज़्यादा फीमेल होती हैं, क्योंकि दे हैव दिस सॉफ्ट टच। इट्स नॉट दैट कि मेल डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं ऑल, बट द थिंग इज आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम आता है कि फीमेल डॉक्टर्स को जो है वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। अब अगर मैं ये कहूँ सोशल फैक्टर्स हैं जिस तरीके से आपने कहा, ऑफ कोर्स देवर मैनी सोशल फैक्टर्स फॉर मी एज वेल। कभी आपको फैमिली को टाइम ज़्यादा देना होता है, कभी आपको अपने बच्चों पे फोकस ज़्यादा करना होता है एंड ऑल। So whenever there is a situation like that, so me and my managers we make sure कि अगर किसी के साथ भी कोई ups and downs आ रहे हैं and they need any flexibility in their work, so we try to accommodate that, because we understand as a female as well, and we understand कि you are one person and your work is part of it. सही है। ऑफ सो कोर्स। वी ट्राई आवर बेस्ट कि जो है हम उनकी लाइफ को ना मोल्ड करें, हम अपने वर्क और लाइफ को कंबाइन इस तरीके से अपनी फीमेल डॉक्टर्स के लिए रखें कि दे आर मच मोर इन अ बेटर पोजिशन टू कंटिन्यू बोथ द थिंग्स टुगेदर। आई वुड रियली रियली डू नॉट लाइक कि अगर हमारी जॉब की वजह से या हमारी कंस्ट्रेंट्स की वजह से कोई फीमेल को जॉब छोड़नी पड़ जाए। सो नहीं, and I think all of my team is working towards that. My male doctors are always there to cover for female doctors, and similarly other female doctors are always there to cover for another female doctors. So we have a very strong team, thanks नहीं, to आई एम श्योर अगर इतनी Allah. हेल्पफुल इन्वायरमेंट हो तो मतलब हर लड़की मोटिवेट होगी काम करने के लिए, मतलब हर किसी के लिए आसान होगा अगर इतना हेल्प किया जा रहा है और सब कुछ। तो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव यू यू गाइस आर टेकिंग। तो अब आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्योंकि एज यू टोल्ड अस दैट इट इज़ अ 24 आवर कमिटमेंट, सो हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ टुगेदर? So I think it's not just now that I have started working. मैं 2007 में I did my graduation, जिसको MBBS कहते हैं। फिर उसके बाद I did my specialization from Khan Hospital after my internship from there. और उसके बाद I took a 2 years gap because we moved out of Pakistan because my husband's posting was in Philippines. एंड उसके बाद से आई थिंक 2014 से लेके अब तक
I have been working. Initially, I was working in Aga Khan again. Then again, I joined Sehat Kahani, and then almost 1.5 years back, I joined BIMA. So during that time, I had three kids, or they have always seen me studying. They have always seen me working, and I think I would like to say that my family, my in-laws, my mother, my father, I think they have all been very, very supportive. Obviously, my husband as I'm well. sure. So somehow or the other, all of my three kids are used to this, lifestyle, and they understand that right now, even because Bima mein we have hybrid working, so they understand if Mama is in meeting, we don't need to go and intrude her, right? So they will wait for me to come out and say, "Now I'm done." So even the youngest one knows that, this is something, it's serious. Let mama work first, and then I will talk about whatever I wanted to talk about. So अब एक डिसिप्लिन बन चुका है फैमिली के भी अंदर, और हमने मिलके एग्जाम्स दिए, बड़े मेरे बड़े बेटे ने और मैंने, बिकॉज एज यू नो कि Great. डॉक्टर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ एग्जाम्स चल रहे होते हैं, कोई ना कोई टेस्ट चल रहे होते हैं. तो देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग कोविड दैट आई वाज गिविंग माय पोस्ट ग्रेड एग्जाम, रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल फिजिशियन यूके का, and my son was, working for his finals. So there had been quite a few incidences जिसके अंदर हम सारे एक साथ पढ़ रहे होते थे. So I think अब वो एक माहौल बन चुका है, पढ़ाई वाला और जॉब वाला और काम वाला. So we all, complement each other now. और अब आपको लाइक इतना करियर ओरिएंटेड देखकर, इतना पैशनेट देखकर अपनी जॉब के बारे में, आपके बच्चे आपसे ये भी लर्न कर रहे होंगे कि उनने भी लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि उनके फुटस्टेप्स जो उन्हें फॉलो करने हैं, उनका स्टैंडर्ड और मेरिट बहुत हाई हो गया आपको देखकर. तो उनमें ये बात आई है कि अब वो भी कुछ इसी तरह का करना चाहते हैं, समथिंग बिग फॉर देयर लाइफ? So I think they are very young right now. One is 12, one is 7, and one is 5. So can't say right now, but I think they're very intelligent, very smart kids, and I'm sure whatever they will do, that will be something very useful for people also. Because मैं जब भी उन लोग से बात करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि there should be something जो कि आपको अपना एक पर्पस पता होना चाहिए लाइफ में कि why are you here? There must be a reason that you were born, right? So ये मैं बातें अपने बच्चों को ये बोल रही होती हूँ कि find that purpose, and you will do great. But there is no pressure. So ऐसा नहीं है जो यूजुअली पाकिस्तान में यही होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है. So अब तो आपने देख लिया होगा कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इट्स वेरी स्मॉल, और अब प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुके हैं. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, दे वुड ऑल्सो नो एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट डू दे वांट टू डू. बट आई एम श्योर इंशाल्लाह दे विल बी ब्राइट चिल्ड्रन एंड गुड ह्यूमन बीइंग्स. आई एम श्योर आई टू. होप सो. तो अब आप मुझे बताएंगी कि मतलब हर मतलब कोई भी प्रोफेशन कोई भी इंसान चूज करता है तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी होती है जो उसको इंस्पायर करती है कि वो प्रोफेशन चूज करे. तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू बिकम अ चीफ मेडिकल ऑफिसर? व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? व्हाई दिस? सो या सो आई थिंक चीफ मेडिकल ऑफिसर तो बहुत ही लेटर स्टेज पे आया है. सबसे पहले तो डॉक्टर कैसे बने के ऊपर अगर मैं बात करूं, so during my childhood, my puppo used to be she is a doctor. She's a gynae oncologist in Ahan, and I used to adore her. I used to really get inspired by looking at her. Dr. Alia Begum उनका नाम है. And जब भी बचपन में आई यूज्ड टू सी हर गोइंग टू हॉस्पिटल, एंड जब भी हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात होती थी एंड ऑल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ स्पीकिंग शी हैड, एंड लोग उनसे इतने इम्प्रेस्ड, एंड आई वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, इवन माय पेरेंट्स वर वेरी इम्प्रेस्ड. सो आई यूज्ड टू बी लाइक, दिस इज समथिंग आई आल्सो वांट टू डू. और कितनी रिस्पेक्ट है और कितने लोग आपको पसंद करते हैं, दिस एंड दैट. So I think one inspiration was from there. Another was my grandmother. She had cholangiocarcinoma, और उनकी वजह से बहुत बार मुझे हॉस्पिटल जाना होता था. एंड आई यूज टू सी कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इतना इम्पैक्ट करके मेरी दादी पे जाते थे कि द वे दे स्पोक, जितना प्यार से उन्होंने बात की, जितना आराम से उन्होंने उनको समझाया, और जितना तहम्मुल से उन्होंने जो है उनको थोड़ी सी होप दी, और थोड़ी सी एक उसी के साथ मुश्किल बात भी बताई,
और फिर उसके बाद माई दादी यूज्ड टू टेल मी कि देखो, या सो माई दादी यूज्ड टू टेल मी, देखो आधा इलाज जो है ना बाद से हो जाता है, दवाई बाद में आती है. सो Yeah. दीज आर द फ्यू थिंग्स जो होते 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 आई थॉट, यू नो, बीइंग अ डॉक्टर इज समथिंग आई रियली वांट टू डू. आई रियली वांट टू बी यू नो दिस काइंड ऑफ पर्सन जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हो किसी की लाइफ के ऊपर. अलॉन्ग विद दैट सारे कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी, जैसे लाइक आई टोल्ड यू, पाकिस्तान में फॉर फीमेल्स आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा आपका प्रोफेशन होता है आइदर टीचर और डॉक्टर. ये मेरे ज़माने की बात है. अब नहीं, चेंज हो अभी गया भी यही थैंकफुली. बात है। सो दैट वाज देयर एंड पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी. तो डॉक्टर तो बन गई मैं फ्रॉम जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. देन आई जॉइंड AKU. और वहाँ पे आई थिंक AKU रियली रियली यू नो ट्रांसफॉर्म्ड मी. वहाँ पे पता चला यू नो कितनी डाइवर्सिटी है इस फील्ड के अंदर. इट्स नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन योर फील्ड. और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि यू नो टेली मेडिसिन की तरफ मैं थोड़ा सा यू नो इंक्लाइंड हुई. और आई थिंक टेली मेडिसिन इज समथिंग जो कि इट्स सुपर पावरफुल थिंग. आप अपने घर से बैठ के कितने दूर अपने पेशेंट्स को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. यू कैन यू नो पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड चीज़ें आप इतनी सारी कर सकते हैं. And I think being a female also, when you cannot go out in the hospital, और आप अगर कोई बच्चों की वजह से कोई सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई फैमिली रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस फ्रॉम योर होम. और आफ्टर कोविड एवरीबडी नोज दैट यू नो टेली मेडिसिन के जरिए कंप्लीटली आप इलाज कर सकते हैं. 70 to 75% आपके डिजीज जो हैं वो आप वीडियो कॉल पे और ऑडियो कॉल पे ओवरकम कर सकते हैं और डील कर सकते हैं. इट्स ओनली फ्यू ऑफ द पेशेंट्स हु नीड यू नो फिजिकल केयर. सो एज सून एज आई जॉइन सेहत कहानी, आई थिंक उसके बाद से आई थिंक आई न्यू दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. बिकॉज जब मैं AKU में होती थी मैं एक टाइप के लोग देख रही होती थी, अपर क्लास या फिर बिल्कुल यू नो बहुत ही जो गाँव से बेचारे बहुत मुश्किलों के बाद वहाँ तक पहुँचे होते हैं अपना सब कुछ बेच-बाच के. एंड आई थिंक आफ्टर जॉइनिंग टेलीमेडिसिन ऑर्गनाइजेशन, आई थॉट दैट एक लैपटॉप की स्क्रीन के थ्रू आई कैन कनेक्ट विद सो मेनी विलेजेस, आई कैन कनेक्ट विद एनी काइंड ऑफ पेशेंट्स एंड आई कैन यू नो टीच देम अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो उधर रह के नहीं सीख सकते और मैं आराम से उधर से उनसे बात करके बता सकती हूँ. So I think that transformed me. और उसके बाद of course I really miss my clinical engagement which I had in hospitals. But the thing is, this is something which is much much more impactful. I think बीमा में मुझे 1.25 साल 1.5 साल के अंदर ही मैंने 5 लाख consultations मेरी टीम ने की थी. तो आई थिंक जो कुछ मैंने सीखा है इन AKU और मेरी पोस्ट ग्रेड जो मैंने रॉयल कॉलेज से की है एंड ऑल, तो आई थिंक आई वुड फील मच बेटर कि अगर मैं वो इन तमाम डॉक्टर्स के लिए ट्रांसफर कर सकूँ और दे आल्सो यू नो इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड्स और हम लोग एक जगह से इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट करें. तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच केप्ट मी गोइंग. और चीफ मेडिकल ऑफिसर आई थिंक टाइटल जो भी हो, दिस इज व्हाट द पर्पस इज. और आई थिंक इस रोल के अंदर आई कैन डू इट इन अ मच बेटर वे. सो Yeah, of course. या. तो मतलब आई थिंक पेशेंट्स के लिए भी इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि आप यू नो देयर आर डॉक्टर्स जिनको आप कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बैठते हैं उनके टाइमिंग्स होते हैं. अगर आपको कोई बहुत लाइक इमरजेंसी हो तो आप जाकर इमरजेंसी में डॉक्टर को देख सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं या उनसे केयर मिल सकती है. बट आई थिंक ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है कि विद यू गाइज उनको 24 आवर अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, मेडिसिन की, हेल्प की, गाइडेंस की, तो वो 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी होगी है. तो आई थिंक इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स का होता है. सो यू आर गोइंग डूइंग ग्रेट, ग्रेट जॉब. तो अब आप और कोविड की बात आप करिए कि कोविड में तो सब कुछ वैसे ही ऑनलाइन हो गया था, इवन जॉब्स हर चीज़ हो गई थी. तो क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड वाला टाइम तो आपकी एब्सोल्युटली. कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनने एक्चुअली ज़्यादा लर्न किया होगा कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है
क्योंकि इससे पहले तो ये ट्रेडिशनल था ना कि अगर आप बीमार हो तो आपने एक डॉक्टर रखा होता है जो आपका फैमिली डॉक्टर है, और नो मैटर कि आपको क्या बीमारी है, आप जाते हो उसी डॉक्टर के पास ही हो। ठीक है, मतलब चाहे उसकी वो फील्ड हो या ना हो, क्योंकि लोगों को बहुत कम नॉलेज है कि हर डॉक्टर जो है ना वो हर फील्ड का अलग डॉक्टर होता है। लेकिन जो फैमिली डॉक्टर होते हैं ना वो उसको ऑटोमेटिक कंसिडर कर लेते हैं कि वो आपकी हर बीमारी का इलाज करेगा। तो कोविड में ये लोगों ने ज़्यादा लर्न किया है कि नहीं, मतलब डॉक्टर्स और भी होते हैं। अगर आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी है, देयर आर साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट, सोशियोलॉजिस्ट फॉर दैट। तो आपको कोविड में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हुए? सो आई थिंक सबसे पहला बेनिफिट तो मैं ये बोलूँगी कि लोगों की अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स टेलीमेडिसिन वो बहुत बढ़ गई है आफ्टर कोविड, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स, राइट? किसी को भी शौक नहीं था, इवन डॉक्टर्स को भी शौक नहीं हो रहा था हॉस्पिटल्स जाने का, बिकॉज एवरीबडी वाज सो स्केयर्ड ऑफ दैट या वायरस। और जो लोग पहले टेलीमेडिसिन को समझते थे इससे क्या इलाज होगा, और जब तक डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप ना रख ले, जब तक हाथ ना लगा ले, तब तक उसको क्या पता लगना है, राइट? यही यही मैं हमेशा सुनती थी लोगों से। या एंड आफ्टर दैट पीपल्स बिल्कुल एक जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया, और वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, और उन सबको समझ आना शुरू हो गया कि इट्स फाइन। आप फ़ोन पे भी बात करके, फ़ोन पे अगर मैं आपको कहूँ, मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार और फ्रेंड्स, दे स्पीक टू मी ऑन फ़ोन, देयर इज़ नो वीडियो कॉल इवन, राइट? इवन कभी ऐसा होता है कि अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आई टेल देम जब तक पिक्चर नहीं भेजोगे मैं नहीं कर सकती, सो दे सेंड मी पिक्चर्स। सो व्हेन आपके रिश्तेदार और फ्रेंड्स जो अगर डॉक्टर्स हो, आप उनसे इजीली बात करके अपना इलाज कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर जो कि जो है या अपनी क्लिनिक ऑनलाइन रखना चाहता है। सो आई थिंक कोविड हेल्प दैट अ लॉट। एंड आपने देखा होगा बहुत सारी जो टेलीमेडिसिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे बूम्ड ड्यूरिंग दिस होल एरा, कोविड एरा। और जब लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, लोगों ने ज़ाहिर है वो ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू कर दी, उन हेल्पलाइंस पे कॉल करनी शुरू कर दी। और वही जो चीज़ आपने कही थी कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी वो एक फैमिली डॉक्टर होता है, और आप बचपन से जवानी तक उन्हीं के पास जा रहे होते हैं। सो एग्जैक्टली दैट वाज देयर। और फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम मैं कर रही हूँ, बीमा मिल्विक पाकिस्तान, सो यूजुअली जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, आपकी एक फ़ाइल होती है जब आप क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर अपने पास लिखते हैं, और जब आप नेक्स्ट टाइम जाती हैं तो उनके पास सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सो अब ये इलेक्ट्रॉनिकली लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिया। और उससे ये होता था कि अगर आज आपने मुझसे बात की है राबिया, और अगर आप मुझसे 3 महीने बाद बात करती हैं, तो आई वुड नो कि वेयर वी लेफ्ट 2 मंथ्स बैक। ठीक है? सो ये वाली चीज़ ने फ़ायदा ये किया कि वो रिकॉर्ड मेंटेनिंग और कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है, वो फिर रहने लग गई। और जब लोगों ने देखा कि अच्छा चलो, इट डज़न्ट मैटर कि मैंने 2 महीने पहले कॉल की थी और फिर अब मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मौजूद है, तो एक ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए थी, राइट? और फिर वो ट्रस्ट ज़ाहिर है डॉक्टर्स एंड पे भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने पेशेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं। उनको आप कितनी देर तक सुन रहे हैं, कितनी उनकी बात तहम्मुल के साथ सुन रहे हो, कितना आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि आपकी क्लिनिक की जो कंसल्टेशन है, वो 10 मिनट्स में एंड हो जाती है, 7 मिनट्स में एंड हो जाती है। But a tele-consultation usually is longer than that, or it should be longer than that, because जब आप क्लिनिक में नहीं है तो ऑब्वियसली यू कांट सी योर पेशेंट। आप बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज से जो चीज़ असेस कर लेते थे, वो अब आपने सिर्फ आवाज़ से या आपकी पिक्चर के साथ या वीडियो के साथ आपने असेस करनी है। तो यू नीड टू गिव मोर टाइम टू ऑब्जर्व योर पेशेंट, और यू नीड मोर टाइम टू बिल्ड दैट रेपो विद योर पेशेंट। और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट कॉल है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मोर टाइम देन द नेक्स्ट वन। आई एम तो श्योर। आई थिंक लोगों को भी समझ आ गया, डॉक्टर्स को भी ये आर्ट आ गया कि किस तरीके से बात करनी है, बिकॉज़ टेलीमेडिसिन इज़ समथिंग वी वर नेवर टॉट ऑफ। ये सब हमने सेल्फ लर्न किया है आफ्टर कोविड, राइट? और या अनफॉर्चुनेटली, एंड आई थिंक नाउ नाउ इज़ द टाइम कि मेडिकल कॉलेजेस को भी अब सोचना चाहिए कि टेलीमेडिसिन शुड आल्सो बी अ सब्जेक्ट जो आप अपने करिकुलम में ऐड करें। और या सारे डॉक्टर्स को ये आर्ट आनी चाहिए कि आप ऑनलाइन कैसे एंगेज करेंगे अपने पेशेंट से, वो क्या सवाल पूछने ज़रूरी हैं कि आप डिज़ीज़ मिस ना कर सकें। सो होपफुली अब इन कमिंग ईयर्स ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएँगी। और प्लस ये सारी चीज़ों के बाद आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हों
जैसे पीएमडीसी है पाकिस्तान में, इसी तरीके से कोई टेली मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए भी कोई बॉडी हो, जिसके अंदर देखा जाए कि क्या कोई मेल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, कोई गलत इलाज तो नहीं हो रहा है, और डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, कोई क्वैक्स तो नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर क्वैक्स बहुत कॉमनली नज़र आते हैं, स्पेशली छोटे इलाकों में, देही इलाकों जी। में। सो जब तक रेगुलेटरी बॉडी इन तमाम चीज़ों पर काम नहीं करेगी, सो टेलीमेडिसिन को भी जो है ना थोड़ा-सा और ज़्यादा फ़रोग़ मिलने में प्रॉब्लम होगी। बट दिस इज़ अ वेरी अमेज़िंग थिंग, जिसके अंदर हम लोग आराम से अपने रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेलेबल नहीं है, ईज़िली अफ़ोर्डेबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, हम टेलीमेडिसिन के ज़रिए बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को जो हैं देही इलाके के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ। नहीं, इट्स ग्रेट। आई थिंक लोगों को अब नॉलेज और अवेयरनेस भी ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान जो आपके गांव टाइप लोग हैं, वो लोग तो इतना फील भी नहीं करते नीड डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि उन्हें अपने सेल्फ मेडिकेटरी टोटके रखे होते हैं जिनसे वो करते हैं, क्योंकि एफर्ट है ना कि हुँ, आपने डॉक्टर के पास जाना है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है और बहुत लोग विलिंग नहीं होते उसको पे करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा काम है कि आप लाइक एफर्टलेस, यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉल एंड देन जिस चीज़ का भी डॉक्टर से आपने बात करनी है, कोई भी मेडिसिन चाहिए, फिर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ऑन योर टेस्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि मनी जो है वो एब्सोल्युटली। बहुत कंस्ट्रेंट है आजकल फॉर अ लॉट ऑफ लोग जो हैं, मेजॉरिटी। तो हुँ, इसलिए तो एज यू आर इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, बट मेनली फॉर गर्ल्स, so what would you like to एब्सोल्युटली। advise them, like especially So, girls, a message for girls? message for girls, I think you should value yourself more than anybody else. Or I think for health and our mental well-being, we should be very selfish. और उसके अंदर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नोबडी एल्स विल। और आई थिंक सबसे पहले हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हमें अपने आप में एक्सेप्ट करनी चाहिए और डाउट नहीं करना चाहिए। Because usually I see many people, and I used to doubt myself as well. So the thing is, whenever we start believing in our own self, everybody else also will. Yeah, true. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और आई थिंक ख़वातीन जिस भी चीज़ में आ जाती हैं, वो बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, एंड वी हैव ऑल सीन इट, इट्स नॉट जस्ट अ सेइंग, इट्स लाइक प्रूवन फैक्ट। और जो अब डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, वो की ही इसलिए जा रही है कि जो एंगल एक फ़ीमेल लाती है, इन बिज़नेस ऑल्सो, in customer experience also, in employee experience also, in everything, वो Yeah, usually men cannot, because आप ये देख लें, हम किसी भी रोल में हो, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू पीपल, वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली। यूजुअली ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कनेक्शन जो है वो रिलेशन से ना हो रहा हो, राइट? मेल्स yeah, का भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक वो जो सॉफ्ट कॉर्नर और जो फीलिंग्स जो हैं, वो इमोशनली जितनी स्ट्रेंथ हम में है, I think Bhutni, it's not there in male, and which is why I think जो angle and जो value एक female ला रही होती है, you cannot deny that fact, and मतलब no one can deny the value we are bringing. It's like proven now. So यही मेरा message है to all the females, that we need to start believing in ourselves and just try to overcome all the barriers. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई फीमेल्स जो हैं वो किसी चीज़ के अंदर कहीं एक लेवल पे पहुँच चुकी हैं, so they should be the one who should be facilitating other females also. Try yeah, to be a multiplier. empowering them. So yeah, अपने अपने रोल्स के अंदर कोशिश करें how you can push other females, lift other females around you, और जितने लोग कोशिश कर सकते हैं कोचिंग करें, मेंटोर बने अपने अराउंड फीमेल्स के लिए, और उससे यही होगा कि इट्स अ शाइनिंग स्टार। जब आप देखते हैं कि अच्छा एक फीमेल ने ये कर लिया, ओह इसके साथ भी फैमिली प्रॉब्लम्स थे, ओह इसके साथ भी ये इश्यूज थे, बट शी ओवरकेम दैट, सो दैट गिव्स अ होप टू अ लॉट ऑफ फीमेल्स जिन्होंने छोड़ दिया हुआ होता है करियर, जिन्होंने लंबा गैप ले लिया होता है, एंड दे आर थिंकिंग वेदर आई विल बी एबल टू एस इट और नॉट, वेदर आई शुड बी ट्राइंग फॉर इट और नॉट, इट्स यूजलेस। सो वो एक जो होप देते हैं ना, आई थिंक वो फीमेल्स ही दे सकती हैं दूसरी फीमेल्स को। सो आई थिंक एक अनदर जो मैं बोलूँगी एडवाइस इज फॉर ऑल द फीमेल्स हु हैव
capacity to influence other females, please try to, be a helping hand to the other ladies. आई एम श्योर, आई होप कि जितनी भी लड़कियां आपको सुनेंगी वो इससे सीख सकेंगी और इस एडवाइस को इम्प्लीमेंट कर सकेंगी, और शायद उनमें ये कॉन्फिडेंस आ सके कि वो कर सकती हैं, और वो खुद बिलीव करेंगी तो वो कर सकती हैं, उनको लोगों के बिलीव की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप खुद बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो, यू कैन डू वंडर्स। So last question मेरा आपसे ये है that if you have to Absolutely. describe yourself in three adjectives, using three adjectives, what would they be? Hmm. So hardworking, ethical, and hopeful. Great. So thank you very much, Dr. Hina Ghole, for taking time out for CxO Global and coming here, especially on Sunday. So we're more grateful today because family day tha, aapne हमारे लिए time निकाला. I wish you all the very best for your future, all the wealth, success, health for the future. एंड मैंने पर्सनली आपसे बहुत सीखा है आज, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी आपसे बहुत सीखा होगा, और वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट के साथ साथ नॉट ओनली डॉक्टर्स बनने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वो ऐसे और इनिशिएटिव करेंगे जिससे आपकी लाइफ ज़्यादा पर्पसफुल हो सकती है। सो एनीथिंग यू वांट टू से टू जस्ट एंड द conclude the interview? So I think I would, yeah, appreciate CXO Forum. That I think such forums are basically really helpful for networking, plus understanding what other peoples are doing, what other organizations are working for. प्लस ऑब्वियसली इट्स अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो जैसे आपने अभी कहा कि यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक बहुत सारे लोगों को और कुछ टेली मेडिसिन के बारे में मे बी इससे पता चलेगा। और again, maybe some females are watching it, and some female doctors are watching it who have stopped working, or they have taken a career gap or something. So I think forums like these, वो कुछ स्टोरीज ऐसी शो कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे लाइट आ जाती है, एंड पीपल गेट होप आउट ऑफ इट. सो आई थिंक आई वुड रियली अप्रिशिएट CxO ग्लोबल फोरम फॉर दैट, और इस किस्म के जो शॉर्ट इंटरव्यूज होते हैं, आई थिंक दीज आर रियली रियली हेल्पफुल. नहीं, CxO will keep taking these initiatives and will keep sharing these stories जो लोगों को किसी भी point of life पे inspire कर सकती हैं. Thank you very much, and I hope कि हमारे viewers, CxO के viewers आज बहुत कुछ सीखेंगे. We had a great time with you. I hope we'll get another chance to interact someday, somewhere, and good luck. And viewers के लिए stay tuned for थैंक more यू. interesting interviews, for more interesting stories. Thank you. Have a great day. यू टू. बाय. Thank you. Hafiz.